آج کی ہماری گفتگو ایک ایسی شطرنج کی بساط کے بارے میں ہے جہاں دونوں کھلاڑی سمجھتے ہیں کہ وہ جیت رہے ہیں، لیکن ایک غلط چال پوری دنیا کو جنگ میں دھکیل سکتی ہے۔ بالکل۔ ہم بات کر رہے ہیں ایران اور امریکہ کے درمیان ممکنہ جوہری مذاکرات کی۔ ہمارے پاس BBC نیوز کی ایک رپورٹ ہے جو اس پیچیدہ صورتحال کی گہرائی میں جاتی ہے، اور ہم اس میں سے اہم نکات نکالنے کی کوشش کریں گے۔ جی۔ تو منظر کچھ یوں ہے کہ خلیج میں امریکی فوج کی بڑی تعداد موجود ہے، کشیدگی آسمان کو چھو رہی ہے بہت زیادہ، اور اس سب کے بیچ ترکی میں بات چیت کی ایک آپ کہہ لیں ہلکی سی امید نظر آ رہی ہے، ایک مہوم سی امید۔ لیکن کیا یہ واقعی کشیدگی کم کرنے کی کوئی سنجیدہ کوشش ہے، یا پھر یہ ایک انتہائی خطرناک کھیل ہے جہاں دونوں فریق ایسے مطالبات کر رہے ہیں جن کا پورا ہونا تقریباً ناممکن ہے؟ آئیے اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ضرور۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس اعلان کی جس نے سب کو چونکا دیا ہے۔ ایران کے صدر نے مذاکرات کی حامی بھر لی ہے۔ جی بھر تو لی ہے، لیکن یہ کوئی سیدھا سادہ ہاں نہیں ہے نا؟ اس کے ساتھ کچھ شرائط بھی جڑی ہیں۔ بالکل، یہ ایک ہاں لیکن والی صورتحال ہے۔ ایرانی صدر نے بہت واضح طور پر کہا ہے کہ بات چیت تبھی ہوگی اگر ماحول سازگار ہو۔ سازگار ماحول؟ جی، یہ ایک بہت ہی محتاط جملہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ دھمکیوں اور غیر معقول توقعات سے پاک ماحول چاہتے ہیں۔ یہ الفاظ، دھمکیاں، غیر معقول توقعات، یہ خود بہت بھاری ہیں۔ مجھے یہ جاننے میں دلچسپی ہے کہ ایران کی نظر میں ایک معقول توقع کیا ہوتی، اور ان دھمکیوں سے ان کی اصل مراد کیا ہے؟ دیکھیں، دھمکیاں تو بہت واضح ہیں۔ خلیج میں امریکی بحری بیڑوں کی موجودگی، فوجی آڑوں پر اضافی دستے، اچھا، یہ سب ایران کو ایک مسلسل خطرے کا احساس دلاتا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ آپ ہماری کنپٹی پر بندوق رکھ کر برابری کی سطح پر بات نہیں کر سکتے۔ یعنی یہ مذاکرات نہیں، دباؤ ڈالنے کی کوشش ہے۔ بالکل، یہ پریشر ٹیکٹکس ہے۔ اور جہاں تک غیر معقول توقعات کی بات ہے، وہ دراصل پورے مسئلے کی جڑ ہے۔ یہاں ایسا لگتا ہے کہ دونوں فریق ایک ہی کمرے میں تو ہیں، لیکن بالکل مختلف کھیل کھیلنا چاہتے ہیں۔ اچھا، ایران شطرنج کی بساط بچھائے بیٹھا ہے اور صرف ایک موضوع پر بات کرنا چاہتا ہے، پابندیاں ہٹاؤ اور ہمارے جوہری پروگرام پر معاہدہ کر لو۔ ٹھیک ہے۔ جبکہ امریکہ وہ باکسنگ کے موڈ میں ہے اور چاہتا ہے کہ ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام، خطے میں اس کے اتحادی یعنی حزب اللہ اور ہوتھی، سب کچھ میز پر رکھا جائے۔ تو یہ دو بالکل مختلف ایجنڈے ہیں۔ بالکل مختلف۔ یعنی بات چیت شروع ہونے سے پہلے ہی اس بات پر اختلاف ہے کہ بات چیت کس بارے میں ہونی ہے؟ جی ہاں، یہ تو شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہونے والی بات لگ رہی ہے۔ یہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ ایرانیوں کا موقف بہت سخت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بیلسٹک میزائل پروگرام ہماری دفاعی صلاحیت کا حصہ ہے، یعنی نان نیگوشیبل ہے۔ ان کے لیے بالکل۔ وہ کہتے ہیں یہ ہماری خود مختاری کا معاملہ ہے، اس پر کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح وہ خطے میں اپنے اتحادیوں کی حمایت کو اپنی خارجہ پالیسی کا حصہ سمجھتے ہیں۔ صحیح۔ وہ اسے مذاکرات کی میز پر لانے کو تیار نہیں۔ ایک منٹ، یہاں بیلسٹک میزائل پر اتنا زور کیوں ہے؟ مطلب ایران کے پاس دوسرے ہتھیار بھی ہوں گے؟ کیا یہ اس لیے ہے کہ ان میزائلوں کی رینج اسرائیل اور خطے میں موجود امریکی اڈوں تک ہے؟ بالکل درست پکڑا آپ نے۔ اور یہی امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے سب سے بڑا درد سر ہے۔ یہی اصل نقطہ ہے۔ بیلسٹک میزائل صرف ہتھیار نہیں ہے، یہ طاقت کے اظہار کا ذریعہ ہیں۔ ان کی رینج کی وجہ سے ایران خطے میں ایک بڑی طاقت بن کر ابھرتا ہے، اور یہی چیز امریکہ، اسرائیل اور سعودی عرب کو پریشان کرتی ہے۔ اچھا، اسی لیے امریکی مطالبات صرف جوہری پروگرام تک محدود نہیں ہے۔ تو دوسری طرف امریکی مطالبات کیا ہیں؟ رپورٹ میں اس بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ ہماری ذرائع میں ایک تجزیہ کار ہیں فارس، انہوں نے اس کی بہت اچھی وضاحت کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ جو مطالبہ کر رہے ہیں وہ مذاکرات نہیں بلکہ ایران سے گھٹنے ٹیک دینے کا مطالبہ ہے، یعنی مکمل سرنڈر۔ جی، وہ چاہتے ہیں کہ ایران نہ صرف اپنا جوہری پروگرام مکمل طور پر ختم کر دے بلکہ اپنے بیلسٹک میزائلوں سے بھی چھٹکارا حاصل کرے اور خطے میں اپنے تمام اتحادیوں کی حمایت بند کر دے۔ یہ تو بہت بڑے مطالبات ہیں۔ اگر ایران یہ سب مان لے تو اس کے پاس کیا بچے گا؟ فارس کے مطابق یہ ایرانی حکومت کے خاتمے کے برابر ہوگا۔ یہ ایک ایسی ذلت ہوگی جسے کوئی بھی ایرانی حکومت برداشت نہیں کر سکتی۔
और यहाँ ये जिल्लत का लफ्ज बहुत अहम है ना? बहुत अहम है। ये सिर्फ पॉलिसी की तब्दीली का मामला नहीं है। तो ये सिर्फ मिसाइल और एटमी प्रोग्राम का मामला नहीं है, ये इससे कहीं गहरा है। रिपोर्ट से ये लग रहा है कि ईरान के लिए ये कौमी गैरत का मसला है। बिल्कुल। वो इसे ऐसी लड़ाई के तौर पर देख रहे हैं जिसमें हारने का मतलब अपनी शनाख्त खोना है। जी, इसीलिए कोई दरमियानी रास्ता तलाश करना नाकाबिले यकीनन हद तक मुश्किल है। ईरान के लिए अपने मिसाइलों से दस्तबरदार होना ऐसा ही है जैसे किसी मुल्क से कहा जाए कि वो अपनी फौज खत्म कर दे। उसे मुकम्मल शिकस्त के तौर पर देखा जाता है। बिल्कुल। इसीलिए कतर, तुर्की, मिस्र और ओमान जैसी इलाकाई ताकतें कोशिश कर रही हैं कि इन तमाम मसाइल को एक साथ जोड़ने के बजाय उन्हें अलग अलग खानों में बांटकर बातचीत का कोई फ्रेमवर्क बनाया जाए। लेकिन ये एक बहुत बड़ा काम है। बहुत बड़ा। ईरान की इस हिचकिचाहट और जिल्लत के खौफ को समझने के लिए हमें माजी में भी झांकना होगा। जी। ये अदम एतमाद रातों रात तो पैदा नहीं हुआ, इसकी एक गहरी तारीख है। जी, और इसकी सबसे बड़ी और ताज़ा मिसाल पिछले साल जून का वाक़या है। रिपोर्ट के मुताबिक जब मुज़ाकरात की बातचीत चल रही थी, ऐन उसी वक्त अमेरिका ने ईरान की जौहरी तंसीबात पर बमबारी की। एक मिनट, ये तो बहुत संगीन इल्जाम है। क्या रिपोर्ट में इस हमले की नोयत के बारे में कुछ बताया गया है? मतलब क्या ये एक साइबर हमला था जैसा कि माजी में स्टक्सनेट वायरस था, या? नहीं, रिपोर्ट में उसकी तफसीलात तो नहीं है, लेकिन इसका पैगाम बहुत वाज़ेह था। बिल्कुल। चाहे वो साइबर हमला हो या कोई और कार्रवाई, इसका पैगाम बहुत वाज़ेह था और इसने ईरानी क़यादत की सोच पर गहरा असर डाला है। उस वाक़े में उनके शक को यकीन में बदल दिया कि अमेरिका मुज़ाकरात को सिर्फ एक धोखे के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है ताकि वो हमले के लिए बेहतर पोजीशन हासिल कर सके। तो ये सिर्फ अदम एतमाद नहीं है, ये एक तरह का धोखा है जिसका उन्हें सामना करना पड़ा है। बिल्कुल। इसी वाक़े के बाद ईरान के आला फौजी कमांडर ने ये ऐलान किया कि उन्होंने अपनी हिकमत अमली दिफाई पोजीशन से बदलकर जारहाना हिकमत अमली कर दी है। ये एक बहुत बड़ा बयान है। जी, वो कह रहे हैं हम दोबारा गफलत में नहीं पकड़े जाएंगे, हम हमले का इंतजार नहीं करेंगे बल्कि पहल करने के लिए तैयार रहेंगे। अच्छा। यही तारीख इस बात की भी वजाहत करती है कि वो इस बात पर क्यों जोर दे रहे हैं कि वो मुज़ाकरात के लिए दोस्त मुमालिक की दरख्वास्त पर राजी हुए हैं, ना कि इसलिए कि उन्हें अमेरिका पर भरोसा है। ये सब अवामी सतह पर अपनी पोजीशन मजबूत रखने की कोशिश है। जी बिल्कुल। अच्छा, तो एक तरफ ईरान है जो तारीख की वजह से अमेरिका पर भरोसा करने को तैयार नहीं, और दूसरी तरफ अमेरिका है जो ईरान को कमजोर समझकर मजीद दबाव डाल रहा है। ये तो एक बंद गली लग रही है। इस सूरत हाल में जंग का खतरा कितना हकीकी है? रिपोर्ट में तज्जियाकार फारिस का अंदाजा बहुत तशवीशनाक है। उनके मुताबिक जंग का खतरा 10 में से 6 या 7 है। 6 या 7? जी, ये तो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। वो कहते हैं कि ये मुज़ाकरात शायद कशीदगी कम करने का आखिरी मौका है। अगर ये नाकाम होते हैं तो फिर शायद फौजी कार्रवाई के अलावा कोई रास्ता ना बचे, कम से कम कुछ लोगों की नजर में। और ये सब एक ऐसे वक्त में होता है जब ईरान अंदरूनी तौर पर भी शदीद दबाव का शिकार है। रिपोर्ट में बड़े पैमाने पर हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों और माशी मुश्किलात का भी जिक्र है। जी, और ये इस कहानी का एक बहुत अहम पहलू है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अमरीकी पाबंदियों की वजह से ईरान की मईशत बुरी तरह मुतासिर हुई है। सही। महंगाई उरूज पर है, बेरोजगारी बढ़ रही है और आम आदमी की जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है। इसकी वजह से मुल्क में शदीद समाजी बेचैनी और हुकूमत के खिलाफ गुस्सा पाया जाता है। तो इस अंदरूनी दबाव के क्या असरात हो सकते हैं? क्या ये ईरानी हुकूमत को कमजोर करता है या मजीद सख्त मौक़िफ़ अपनाने पर मजबूर करता है? देखें, यहाँ 2 बिल्कुल मुख्तलिफ नज़रियात हैं। पहला नज़रिया यह है कि ईरानी हुकूमत अंदरूनी दबाव और बैरूनी फौजी खतरात की वजह से कम जौहरी महाज पर कुछ रियायतें देने के लिए तैयार हो सकती है ताकि आवाम को कुछ रिलीफ मिल सके। जी, और रिपोर्ट में इस बात का इशारा भी है कि वो पहले ही कुछ तकलीफ दे रियायतों पर राजी हो चुके हैं। तकलीफ दे रियायतें जैसे कि? सिर्फ याद दहानी के लिए 2015 की जो डील थी उसके अहम नुकात क्या थे जो आज की सूरत हाल से मुख्तलिफ है?
2015 के मुआहदे में ईरान ने अपनी अफजुदा यूरेनियम का बड़ा हिस्सा मुल्क से बाहर भेजने, सेंट्रीफ्यूजेस की तादाद कम करने और अपनी जौहरी तनसीबात को बैनुल-अक़वामी मुआयने के लिए खोलने पर रजामंदी जाहिर की थी। और बदले में पाबंदियां उठा ली गई थी। जी, रिपोर्ट के मुताबिक ईरान आज भी वैसी ही रियायतें देने पर तैयार है जैसे अपना अफजुदा यूरेनियम दोबारा रूस भेजना। ये एक बहुत बड़ी रियायत है क्योंकि ये उनके जौहरी प्रोग्राम को कई साल पीछे ले जाएगी। लेकिन अगर ईरान इतनी बड़ी रियायत देने को तैयार है तो फिर मसला कहाँ है? मसला दूसरे नजरिए में है। हो सकता है कि सदर ट्रंप और उनकी इंतजामिया ईरान की इस लचक को कमजोरी की अलामत समझ रही हों। अच्छा, वो शायद ये सोच रहे हों कि ईरान पाबंदियों और अंदरूनी मुजाहरों की वजह से घुटनों के बल आ चुका है और ये हुकूमत को एक मोहलक ज़र्ब लगाने का सुनहरी मौका है। लेकिन क्या ये बहुत बड़ी गलतफहमी नहीं हो सकती? रिपोर्ट में इसका मुवाजना 2003 में इराक पर हमले से किया गया है। जी, तज्जियाकार इसी खतरे से खबरदार कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो सकती है। 2003 में भी यही सोच थी कि इराकी आवाम अमरीकी हमले का खैर मकदम करेंगे, लेकिन नतीजा बिल्कुल उलट निकला और एक तवील और तबाहकुन जंग शुरू हो गई। सही। तारीख बताती है कि बैरूनी दबाव और हमले का खतरा अक्सर कौमों को हुकूमत के खिलाफ करने के बजाय उसके पीछे मुत्तहिद कर देता है, खास तौर पर ईरान जैसी कौम परस्त कौम को। ये एक बहुत बड़ा जुआ है जो अमेरिका खेल रहा है। बहुत बड़ा। तो आज की गुफ्तगू का खुलासा ये है कि तुर्की में एक मुमकिना मुलाकात की उम्मीद तो है, लेकिन दोनों फरीक बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ मकासद के साथ मेज पर आ रहे हैं। जी, ईरान एक महदूद जौहरी मुआहदा चाहता है ताकि पाबंदियां हटें और मईशत संभले, बिल्कुल। जबकि अमेरिका एक वसीतर तब्दीली चाहता है जो ईरान के पूरे इलाकाई किरदार को बदल दे, और इस सब पर माजी के धोखे और गहरे अदम एतमाद का साया है। बिल्कुल। और इस खेल में सिर्फ दो खिलाड़ी नहीं है। हमें ये भी याद रखना होगा कि दूसरे इलाकाई ममालिक, खास तौर पर इजराइल, हाँ, उनका किरदार भी अहम है। जी, वो इस सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं और उस पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। ज़राए में इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के मुतालबात का भी जिक्र है, जो ईरान के मिसाइल प्रोग्राम के बारे में है। तो ये सिर्फ अमेरिका और ईरान का मसला नहीं है, इसके असरात पूरे खित्ते पर पड़ेंगे। यकीनन। आखिर में एक सोचने की बात, रिपोर्ट में बताया गया है कि ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम पर तकलीफ दे रियायतें देने के लिए पहले ही तैयार है। अगर ये सच है और जौहरी मसले पर एक मुआहदा मुमकिन है, तो फिर ये सवाल पैदा होता है कि क्या अमन की राह में असल रुकावट खुद जौहरी प्रोग्राम है, या ये मशरिक वस्ता में असर और रसूख और तसल्लुत की एक वसीतर जियोपॉलिटिकल कशमकश है। बहुत अहम सवाल है, जिसके लिए जौहरी मसला सिर्फ एक आसान बहाना या सबसे नुमाया महाज है। इस पर गौर करने की ज़रूरत है।